Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, from Monday to Thursday at 11 a.m. in the morning we come up with the Hindu analysis. Today is 5th September and we are here with the Hindu analysis of 5th September. So if I'm audible and visible, just write in the comments. Yes sir, you're audible. Okay. So, can you please tell me that 5th September, why it is famous? Yes, some people are writing. Happy Teachers Day. Okay, thank you everyone. Thank you. एक चीज बताइए, why do we celebrate 5th September as actually Teachers Day? In whose memory, किनकी याद में मनाते हैं? And please tell me that what was his designation? Why he is famous? मतलब उन्होंने कौन सी पोजीशन ली थी? Okay. Yes, thank you everyone. Thank you Amisha, Pranjali, Tikkai, Tanzila. Yes, Gauri, you all are Zoya, Jagriti. Thank you. So today is Teachers Day. आप बताइए कि किनकी याद में? Yes, very good. This is Dr. 𝗟𝗲𝗴𝗹 𝗏𝗂𝗏𝗀's birthday. And who is Dr. S. Radhakrishna? What are his achievements? President? कौन से president थे? कुछ बताइए. You should have some idea about it. So that is why we are knowing. So today is Tuesday, 5th September. आज हम लोग the Hindu analysis 5th September की जानेंगे. So he was the second president and first vice president of India and the first winner of Bharat Ratna. ठीक है, तो आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए. So he was actually the second president of India, first vice president ये पता होना चाहिए, second president of India after Dr. Rajendra Prasad, and he was actually all which is actually this is the fourth vice chancellor of BHU and all. So he was actually one of the first recipient of Bharat Ratna. Recipient of Bharat Ratna. So तीन लोगों को first time मिला था भारत रत्न. I hope you are aware. C. 𝗟𝗂𝗏𝗀, C.V. Raman, and Dr. S. Radhakrishnan. ठीक है. So just have an idea about it, है ना? तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए. He was born on 5th September 1888, right? Okay. Yes. तो ये सब बेसिक चीजें कुछ पता होनी चाहिए. So let's start with today's article. First में था ready to assess capacity of 13 hill states government tells Supreme Court. This will be discussing. Then China's president will not attend G20 summit. This we will be discussing about it. So let's start with the first one. देखो actually क्या है, I hope you are aware. So these are some of the images that are coming from the Himalayan states of Himachal Pradesh and all. So we have seen in the recent days landslides happening. Okay. And so now so people are saying, so there are experts who are saying that perhaps it's not only natural but man-made reason also. So man-made reason is also responsible for this. Oh, what is the meaning of man-made reason? In the sense that we are over constructing it. So the lack of sustainable tourism, you can say. Over tourism is happening, over construction is happening. Okay. So that is why the idea of capacity should be there. Okay, holding capacity जिसको कहते हैं. The carrying capacity is the maximum population size that an ecosystem can sustain without getting degraded. That's called as carrying capacity. So if we are sending, if more people are going to the hill areas as compared to the carrying capacity, it will impact the environment adversely. Okay, so that is what is being talked about. So 13 states, मतलब ये सब सारे जितने states हैं, ये सब these are the states which are actually Himalayan states. यहाँ पे हिमालय मैंने बताया है आपको, 3 ranges are there. Okay, so the center has proposed forming a 13-member technical committee to evaluate the carrying capacity of 13 Himalayan states. तो 13 member की committee बनाई गई है find out करने के लिए कि कितने लोग आ सकते हैं, कितना maximum limit होना चाहिए. These are the things. So that is what the additional Solicitor General 𝗟𝗲𝗴𝗹 𝗏𝗲 said to the Supreme Court. Okay, so just have an idea about it, because yes, these are the things we should be knowing about it from perspective of environment. Okay, the next article is Chinese president will not attend Delhi G20 summit. So I hope you are aware, very soon we'll be having G20 summit in Delhi, 9th and 10th September. And instead of president of China, premier of China is coming. So who is the premier of China? Your options are Li Keqiang, Wang Yi, Xi Jinping. So who is the premier of China that is going to attend the G20 summit? Premier is actually very similar to, you can say, prime minister, but in China actually president is considered as more powerful than premier. Okay,
प्रेसिडेंट वहां ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं प्रीमियर के मुकाबले. जैसे इंडिया में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु टेक्स ऑल द डिसीजन ना, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए. So but there actually president is considered as more powerful and all. Yes, 𝗟𝗏𝗀𝗏 actually he is the premier of China. इससे इनसे पहले ये थे, so he is ex premier and he is the current foreign minister of China and he is the current president of China. ठीक है, ये सब चीज बेसिक पता होनी चाहिए. So 𝗟𝗏𝗀𝗏 is the right answer to this question. Okay, so foreign ministry declines to give reason for Xi's absence, says Premier 𝗟𝗏𝗀𝗏 will attend the meet. Beijing hopes the grouping will rise up to challenges facing global economy development, etc. China's foreign ministry announced on Monday that President Xi Jinping will for the first time skip a G20 summit. पहली बार G20 summit वो skip करेंगे. And second rank में जो 𝗟𝗏𝗀𝗏 है, he will be actually coming to attend G20 summit. No reason have been given by Xi Jinping skipping the summit, a key annual diplomatic event that China usually plays special emphasis on. Till now, China was very much concerned, very much the China used to give a lot of importance to G20, but this time the China has decided not to come. Okay, so 𝗟𝗏𝗀𝗏, who is the premier of China, would be coming. So just have an idea about that. Okay. Yes, before moving on, guys, this is the test series. I request everyone to please attempt these test series. We have seen some people are attempting it, some are not. So please, everyone should attempt it. That would be very beneficial for you. If you have any question regarding this test series, call on this number 95388 And this is the crash course for 2024. And for this next year, for 2025, we have this course. You can call on this number for that. Okay, let's talk about editorials. So these are the 4 editorials. Let's talk about this: a distraction balloon in the winds of federalism. Now, this is actually all about that one nation, one election. This is also called as simultaneous elections. दोनों एक ही चीज है. Simultaneous elections means at the same time we'll be doing the Lok Sabha elections and all the state legislative assembly elections. Okay. So that is what. So basically, the author, Mr. Praveen Chakravarti and Mr. Shashi Tharoor, they're extremely critical of one nation, one election. So that is what their opinion is in this editorial. So let's discuss. Quick question mark, like, sir, what happened? Yesterday's video is not available. Achha. Okay. So let's start. The one nation, one election. देखो कोई बच्चा लिख रहा है sir yesterday का app वाला video नहीं available है. I will talk to the team in this regard. ठीक है, then only I will comment. Okay. Now, one nation, one election proposal mooted yet again by PM is deeply flawed. So they have written that it is deeply flawed. यानी इससे बहुत सारी कमियां हैं, खराबी है. That is what the author says. The reason for the proposal are fallacious. The idea is unimplementable. It is nothing but distraction and all. मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आइडिया जो है इम्प्लीमेंट करने के लायक नहीं है. It's very difficult to implement that. All the states and union will go for the election one time. So that is what they are talking about. That the main issue is actually the Xi Jinping is not coming in G20. These are the things they are talking about. Fine. So the government argues that India is in a permanent campaign to borrow words of American political commentator. India has neither state nor national election every year for the last 36 years. मतलब पिछले 36 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी एक साल ऐसा गुजरा जिसमें इलेक्शन ही ना हुआ हो, स्टेट में या सेंटर लेवल पे होता ही रहता है इलेक्शन. एवरी ईयर वी आर हैविंग सम स्टेट इलेक्शंस एंड ऑल. This diverse enormous financial resource and the time of the government and political parties the deeming concern and all. An election held constantly in some part with a model code of conduct distract the government and leads to policy paralysis. This is the essence of opening argument and all. तो अब supporters of one nation one election का argument बताते हैं. So support करने वाले ये कह रहे हैं कि every year we have election. हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है. जैसे हर 5 साल पे तो पूरे इंडिया लेवल पर होता है. But other than that, कभी जैसे लास्ट ईयर अभी इस साल इलेक्शन है मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में. लास्ट ईयर वी हैड इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश, मेघालय एंड ऑल. तो कहीं ना कहीं इलेक्शन होता ही रहता है पूरे इंडिया में. सो दे आर सेइंग कि इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट पर असर पड़ता है. डेवलपमेंट इज गेटिंग अफेक्टेड. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है. आई होप यू आर अवेयर. तो बहुत सारे पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वहां भेजना होता है इलेक्शंस कराने के लिए. So a lot of times the military and army personnel or paramilitary forces are involved in conducting elections. A lot of officers are involved in conducting elections again and again. हाँ, दूसरी बात पैसा बहुत खर्चा होता है. A lot of money is being spent. ठीक है, both government money और जो मतलब जो इलेक्शन कराते हैं पार्टी का expenditure is also very high. So these are the arguments favoring one nation one election. कि हर टाइम पे इलेक्शन ही होता रहता है. So that is what, but they are not happy with this argument. They are criticizing it. तो चलो देखते हैं इनका भी opinion देखते हैं.
एक्सेप्ट इंडिया, इंडिया मतलब ऑल इंडिया लेवल, 2019 में, then 2024 पे, does not have election every year. One of India's state does. There is a fundamental difference between the two. When there is an election in, say, Bengal, with TMC, Congress, BJP, and the left contesting in Tamil Nadu, governed by the DMK or AMDK, is not impacted. तो बता रहे, लेकिन वो लॉजिक की बहुत ज्यादा सही नहीं है. तो बता रहे, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से द इलेक्शन इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल. ओके, मतलब स्टेट लेवल का इलेक्शन हो रहा है. सो इट इज नॉट इम्पैक्टिंग द गवर्नेंस इन तमिलनाडु. तो ये बता ही रहे हैं कि अगर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है तो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल पार्टीज कंसर्न है इलेक्शन लड़ने के लिए वहां के लिए. सो इट इज नॉट इम्पैक्टिंग द डेवलपमेंट. जो तमिलनाडु या कोई और स्टेट है उसमें वैसी जैसी बात चल रही वैसी चलेगा. दैट इज व्हाट देयर आर्गुमेंट इज. ओके, that is what they are talking about. And national parties with a Delhi based command culture such as Congress and BJP feel pressure again and again. हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जो नेशनल लेवल की पार्टी है उसको हर साल परेशानी, मतलब प्रेशर झेलना पड़ता है. जैसे मान लो दिल्ली बेस्ड कौन कौन पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, देयर ऑल इंडिया लेवल पार्टी. अब चाहे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो, चाहे तमिलनाडु में, चाहे केरला में हो, चाहे गुजरात में हो, दे हैव टू बी एक्चुअली कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू गेट टू फाइट इलेक्शंस, है ना, बिकॉज दे आर ऑल इंडिया लेवल. कहीं भी इलेक्शन होगा तो उनको फाइट करना ही है, या इन अलायंस और एक्चुअली. लेकिन जैसे मान स्टेट लेवल पे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, सो ममता बनर्जी विल बी फाइटिंग इन वेस्ट बंगाल. बट इफ तमिलनाडु में देयर इज डीएमके और एआईएडीएमके, दे आर नॉट सपोज्ड टू वरी. रीजनल पार्टीज को नहीं असर पड़ेगा. जब मेरे यहाँ इलेक्शन होगा तो हम सोचेंगे, अदरवाइज व्हाई शुड आई बी वरीड अबाउट अदर स्टेट्स. सो दैट इज एन इशू दे आर टॉकिंग अबाउट. सो ये वो बता रहे हैं, इलेक्शन इन आसाम विद अ मॉडल कोड डज नॉट स्टॉप रोड ऑफ डेवलपमेंट इन गुजरात. तो वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि अगर आसाम में इलेक्शन हो रहा है सो इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट गुजरात. दैट इज व्हाट द काउंटर आर्गुमेंट दे आर गिविंग. ओके, तो यही सब बता रहे हैं. ठीक है, each of India's state has different political culture. Why should the basic structure of the constitution can be changed for two national leaders to help balance their and all. तो ये बता रहे हैं कि मतलब they are actually critical of the government or the decision and all. The one election idea is only for convenience of BJP's and all. तो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को फायदा होगा, ये सब वो बता रहे हैं. These are the things and all. Yet another misleading argument put forward is that 1951-62 India had 7th less election, hence it is appropriate to revert to that system. This was not designed but by happenstance. तो यही मैंने बताया था, कुछ बच्चों ने पूछा भी था. देखो 1952 से 1967 तक 7th less election हुआ था. तो ये लॉ में ऐसा नहीं लिखा था, बाय डिफॉल्ट हुआ था. सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस तो सारे जगह एक साथ चुनाव होगा, सेंटर और स्टेट में ऑफ कोर्स. तो जब तक चला उसके बाद क्या हुआ, टूट गया. व्हाई? बिकॉज ऑफ हंग असेंबली, हंग पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट रूल. आप समझ रहे हो? जैसे मान लो, देखो उसमें क्या एक मसला ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्शन हुआ सारे जगह एक साथ. अब किसी एक जगह हंग असेंबली हो गया, मतलब लेट्स गिविंग एग्जांपल, लेट्स वाले फॉर एग्जांपल इन झारखंड देयर इज हंग असेंबली, किसी को मेजॉरिटी नहीं हुई तो फिर से इलेक्शन होगा. ओके, हो सकता है 3 साल सरकार चली फिर टूट जाए, ऐसा भी तो होता है. आफ्टर 3 years द गवर्नमेंट द ऑपोजिशन द अलायंस मेंबर विथड्रॉज. तो बाकी के स्टेट पे क्या होगा? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर हंग असेंबली हैपेंस. या मान लो बाकी सारे स्टेट में ठीक हुआ, ऑल इंडिया लेवल पर हंग पार्लियामेंट हो गया, देन व्हाट विल हैपन अगेन, फिर सारा स्टेट में इलेक्शन कराया जाए. ये सब थोड़ा सा इशू है. दैट इज व्हाट द अदर एस्पेक्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज. तो ये सबको पूरा को इनवाइजेज किया जा रहा, मतलब सोचा जा रहा, दीज आर बोथ द आर्गुमेंट्स. ठीक है, इट इज टेस्टामेंट टू इंडियाज प्लूरिटी एंड द नीड फॉर डाइवर्स पॉलिटिकल. ये सब बता रहे हैं कि मतलब वो एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को. ओके, cost saving is the other reason cited for concurrent election, something that even knowledgeable political commentators fall, but one that is deceptive. तो ये बता रहे हैं कि एक आर्गुमेंट दिया गया कि सिर्फ पैसा बचेगा, खर्चा कम होगा. अगर ऑल इंडिया में एक बार में इलेक्शन हो जाएगा हर 5 साल पे तो फिर पैसा बचेगा. But they are saying, the author is saying it is not correct. This argument is deceptive. Various estimates by Election Commission, NITI Aayog and government shows that cost of conducting all states and parliamentary election in a 5-year cycle work out of equivalent of 10 voter per year. 10 rupees per voter per year. The NITI Aayog report has also said that when elections are synchronized, it will cost the equivalent of 5 rupees per person per election. If any in the short term and all. If any in the short term, simultaneous election will increase the cost for deploying for far large number of electronic voting. अब देखो ये जो है ना, इसको कोई नंबर्स नहीं बता सकता है. जैसे ये बता रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कुछ लोग आर्गुमेंट देते हैं कि पैसा बचेगा, बट ही इज सेइंग कि शायद उतना पैसा नहीं बचे, बिकॉज एक बार में सारे जगह इलेक्शन कराना है. सो वन टाइम यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ फोर्सेस एट वन टाइम इन द एंटायर इंडिया. तो ये सब आर्गुमेंट है. खैर बहुत सारी चीज में इस आर्गुमेंट मतलब इस सब आर्गुमेंट में दोनों तरह के डिबेट है ना. So the government would have mounted just by not granting certain vista and all. तो वो बता रहे हैं कि these are the things talking about. A single election may work in the presidential system. हाँ, presidential system होता है, उसमें one election से काम हो जाता है, जैसे US वगैरह में होता है. एक बार पूरे इंडिया में इलेक्शन हुआ and all. These are the things, but
है ना, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। एक और जो चीज है वो फेडरल इश्यूज से रिलेटेड, जैसे वो कई बार बात कर रहे हैं, जैसे होता क्या है, देखो कई बार क्या होता है, इलेक्शन एट स्टेट लेवल एंड इंडिया लेवल इज फॉट ऑन डिफरेंट रीजंस, ऑन डिफरेंट बेसिस। जैसे अगर कोई स्टेट में इलेक्शन हो रहा, मान लो लेट्स से देयर इज एन इलेक्शन ऑन लेट्स से तमिलनाडु और एनी अदर स्टेट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ रीजनल इशू, अगर यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है तो। But when its selection is happening at India level, maybe the same people will not be voting in the same fashion. ठीक है, जो इलेक्टोरल बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है जब सेंटर के लिए वोट कर रहा होता है वही बंदा और स्टेट के लिए वोट कर रहा होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव सीन इन दिल्ली, so in Delhi when local level elections happen, Aam Aadmi Party wins, but when parliamentary elections happens, it's actually BJP has edge। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट दिया जाता है कि when the election happens, the state level election happens, it is the matter or the topic of discussion or the issue is different, and when all India elections level election happen, the issue is different। ठीक है, पंचायत के इलेक्शन कौन करवाता है, वो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, वो अलग होती है, दैट्स अ सेपरेट बॉडी। ठीक है, सो वी आर राइट नाउ नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट एमपी एंड एमएलए इलेक्शंस गोइंग टुगेदर, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। ठीक है, ओके, सो वन नेशन वन इलेक्शन इज अ पॉलिटिकली अनफिजिबल, अनफिजिबल मतलब इनके हिसाब से पॉसिबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली अनवर्केबल मतलब इट्स नॉट पॉसिबल दैट द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन कैन कंडक्ट द इलेक्शन, constitutionally unviable means he is saying, the author is saying that constitutionally it is not possible, the idea is premised on flimsy and shallow ground। तो इनके हिसाब से ये है कि ये ग्राउंड जो है स्ट्रांग नहीं है, एंड ऑल दीज आर व्हाट द ऑथर इज सेइंग। सो ये चीज हो गया। अब देखो साइड में जो आर्टिकल थी वो भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है, और इसमें भी अपीयर ये हो रहा है कि दिस इज आल्सो द क्रिटिसिज्म, ये साइड में आर्टिकल थी द हिंदू एडिटर्स के द्वारा लिखी जाती है, सो दिस इज आल्सो अपीयर्स टू बी क्वाइट क्रिटिकल, है ना। मिलिटेट्स अगेंस्ट फेडरलिज्म, वही ना, फेडरलिज्म मतलब मैंने बताया है द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म that the center and state have independent powers, the state is not subordinate to center and all। so वो बता रहे कि फेडरलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट अगर एक साथ सारा जगह चुनाव करा दिया जाए, that is what they are talking about, the reason is why there is a demarcation of power between center and state and all। So the demarcation allows for specific roles for each representative across these tiers and suggests varied voter choices that could be based on party affiliation and candidate strength, ideological position or on all। ठीक है, ये सब बता रहे हैं, वही सेम आर्ग्यूमेंट उसी तरह की बात है। ठीक है, उसके लिए कमिटी बनाई गई है, आई होप यू आर अवेयर, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंडर में देयर इज अ कमिटी हैज बीन सेट अप इन दिस रिगार्ड। ठीक है, so these are the things being talked about, so they are the ruling BJP is favoring the simultaneous election, these are the things being talked। अब इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, ठीक है, इतना आर्गुमेंट वगैरह नॉट। हाँ, तो यही है कि इसमें कॉस्ट कटिंग होगा एंड ऑल, तो उसमें बहुत सारे मतलब दलील दिया था, आर्गुमेंट्स फेवरेबल है, काउंटर आर्गुमेंट है, इलेक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स आल्सो अलाउ वोटर्स टू होल्ड देयर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट फॉर देयर स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस। यही तो वो बता रहे हैं कि हो सकता है सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन हो वो अदर टॉपिक पर होता है, स्टेट लेवल इलेक्शन दूसरे इशू पर होता है। सो वी हैव डिफरेंट इश्यूज व्हाइल फाइटिंग द स्टेट लेवल इलेक्शन एंड पार्लियामेंट्री लेवल इलेक्शन। सो अगर व्हेन देयर इज साइमल्टेनियस इलेक्शन द इशू विल बी ओनली वन। ठीक है, मतलब नेशनल लेवल इलेक्शन की बात होगी, स्टेट लेवल का जो टॉपिक है वो नहीं फिर उठ पाएगा, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। Those in civil and political society who are committed to India's federal structure should argue the separation of that। So basically they are also favoring that there should not be simultaneous election, that is what the author is talking about। खैर, इसमें डिबेट होता रहता है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि the debates will happen and all around it, so just have an idea। Emerging countries need women-led climate change action। देखो अब क्या बता रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल गोल्स आर म्यूचुअली रीइंफोर्सेबल, क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल दैट विल हेल्प अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब नाउ द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट एसडीजी, सो लेट्स टॉक व्हिच आर द फॉलोइंग एसडीजी टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी। योर ऑप्शंस आर एसडीजी 4, एसडीजी 5, एसडीजी 3, एसडीजी 13। बताइए, सबको लाइक बटन प्रेस कर दो, एटलीस्ट 30+ लाइक्स ले जाओ एवरीवन। जेंडर इक्वालिटी कौन सी एसडीजी बात करता है, मैंने बताया है 1 to 6 एसडीजी याद कर लेना। यस, एसडीजी 5 टॉक्स अबाउट इट, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो ये ऑथर बात भी कर रहे हैं, है ना। यस, प्रिया, चवन, यस, प्रांजलि, जोया, निधिका, जिन लोगों ने भी एसडीजी 5 आंसर किया, जिया, गौरी, कुमकुम, यस यू आर राइट। हाँ, व्हिच आर द फॉलोइंग एसडीजी टॉक्स अबाउट क्लाइमेट एक्शन, बताइए अब। योर ऑप्शंस आर एसडीजी 4, 5, 3, 13। क्लाइमेट एक्शन की बात कौन सा एसडीजी करता है?
हाँ वेरी गुड, यस गौरी सेठी, SDG 13 ये तो होगा नहीं इसलिए ऑलरेडी भी बात कर लिया, ठीक है। SDG 5 या SDG 13 या क्लाइमेट एक्शन, तो इसी की बात कर रहे हैं ना। सो दे आर टॉकिंग एक्चुअली लिंकिंग द जेंडर इक्वालिटी एंड इन्वायरमेंट, इस दोनों को वो लिंक कर रहे हैं, ठीक है। The effect of climate change vary according to the location, socio-economic status and gender, ठीक है। सो जेंडर से भी इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट को। In 2030, 2.2% of total working hours worldwide will be lost to high temperature, productivity loss equivalent to 80 million full-time jobs and all. These are the things they are talking about, ठीक है। फिर in addition, women across the world face severe risk to their health, safety and quality of life. However, women in developing and less developed areas are more vulnerable and all. So developing या less developed areas है, ठीक है, वहां पर ज्यादा वल्नरेबल है। जैसे अगर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि देखो इन्वायरमेंटल, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा, सो व्हाट विल इम्पैक्ट, हीट वेव बढ़ सकता है, एब्रप्ट रेनफॉल हो सकता है। जब रेनफॉल एब्रप्ट होगा तो मानसून एब्रप्ट हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगा, ठीक है। दैट कैन बी द थिंग्स। And women are likely to live in poverty than men, which is just one several socio-economic cultural variables that make them more susceptible to the effect of climate change and all, ठीक है। Women from low income households are more at risk because they are actually more responsible for food, water and other homely unpaid work. अगर वो गरीब घर से, तो of course ज्यादा impact पड़ेंगे women if they are from poor areas, ठीक है। So they will impact more, तो climate change की वजह से या global warming की वजह से उन पर ज्यादा असर पड़ेगा। जैसे cyclones आ सकता है, rainfall abrupt हो सकता है, there are lot of reasons, floods हो सकता है, there can be different reasons and all. So it impacts the disaster. Whenever a disaster happens, the weaker gets impacted more. Due to climate change, more time and efforts are needed to obtain basic necessities. Rural women often shoulder the burden of ensuring access to clean water, adequate cooking fuel, nutritious food for their family. Women may be at increased risk for health and safety because they must travel long distance every day to collect water and fuel. Yes. अब देखो मसला क्या है, जो गांव वगैरह में क्लीन वाटर लाना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो तो उससे ग्राउंड वाटर भी तो असर पड़ जाता है, खराब हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, रेनफॉल नहीं हो रहा है ठीक से, सो द ग्राउंड वाटर इज गेटिंग अफेक्टेड। ओके, कुकिंग फ्यूल नहीं आसानी से मिलेगा, न्यूट्रिशियस फूड हो सकता है आसानी से ना मिल पाए। ओके, सो वुमेन हैव टू ट्रैवल अ लॉट, ग्राउंड वाटर अच्छा नहीं होता, दूर जाके पानी लाना पड़ेगा कुआं से। ओके, सो दीज आर एन इश्यूज। Okay, so and generally, especially in poor families, women have to do these works and all. Okay, so this is why climate change has a disproportionate effect on rural women. तो ज्यादा गरीब की औरतों को और रूरल के एरिया को ज्यादा इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओके, वुमेन इन लो इनकम कंट्रीज लाइक प्रेडोमिनेटली साउथ एशियन सब-साहारन एंगेज इन क्लाइमेट वल्नरेबल ऑक्यूपेशन। हाँ, क्लाइमेट वल्नरेबल ऑक्यूपेशन मतलब ऐसा ऑक्यूपेशन जिससे क्लाइमेट का इम्पैक्ट ज्यादा हो। जैसे बेस्ट एग्जांपल इज फार्मिंग। ओके, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मानसून अब्रप्ट आ गया, कभी ड्रॉट आ गया, तो फार्मिंग खराब हो गया। बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया तो भी फार्मिंग खराब हो गया। ओके, these are the issues with farming. According to the ILO, International Labour Organization, over 60% of working women in Southern Asia and Sub-Saharan are still in agriculture, where they are often underpaid and overworked and all. So 60% of working women जो है Southern Asia या Sub-Saharan में still अभी भी वो एग्रीकल्चर में ही है और ऑफन अंडरपेड और ओवरवर्क्ड है। उनको सैलरी इक्वल नहीं मिलती, मेल और वुमेन की इक्वल सैलरी नहीं मिलती है, ओवरवर्क्ड रहते हैं और डिस्पाइट बीइंग द बैकबोन ऑफ फूड प्रोडक्शन, वुमेन ओनली अबाउट 10% ऑफ द लैंड यूजेस फॉर फार्मिंग एंड ऑल। तो बहुत कम लैंड वगैरह यूज कर पाती। सब परसेंटेज नहीं याद रखना है, बस एक आइडिया लेने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूएन स्टडी, मोस्ट 80% of those displaced by climate related disaster are women and girls. Women, especially those from vulnerable communities, face particular difficulties during and after natural disaster. तो वही बता रहे कि नेचुरल डिजास्टर के बाद women and girls are affected more. So these are the things talking about. They are more susceptible to prejudice and exploitation. जैसे नेपाल में जब हुआ था 2015 earthquake, so there have been some incidents of human trafficking. It was very much in the news. So of course, whenever human trafficking happens, women and female girl child are more affected and all. These are the things being associated with that. तो इसको कहते हैं ethical aspect of disaster. Ethical aspect of disaster management. अगर disaster management जो होता है ना, उसमें बहुत सारे aspect होते हैं। एक ethical aspect ये होता है कि whenever a disaster happens, the probability is high that human trafficking might happen. Why? Because their people get displaced. The issue of livelihood gets arisen. Livelihood की बात होती है, how the girls will or the women will earn. So the probability becomes higher that maybe that human trafficking might increase. So just have an idea about that. Women make up a disproportionately large proportion of the agriculture workforce. ये तो मैंने बता दिया. Changing precipitation pattern and more frequent extreme weather are just the beginning of the problem and all.
Just have an idea. Invest in women's education. Climate change impacts can particularly exacerbate. Exacerbate का मतलब होता है समस्या बढ़ा देना. Increase the problem. Increase the problem. So basically it is saying that climate change impact can particularly exacerbate poverty and socio-economic vulnerabilities among women. तो प्रॉब्लम और बढ़ा सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना. When it comes to adjusting to a change climate, women have to suffer a lot and all. ये सब बता रहे हैं, ठीक है. एक उन्होंने एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया, मैंने पहले ही बताया था, सेवा का, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन का. द फाउंडर इज 𝗟𝗲𝗴𝗶. शी डाइड एक्चुअली लास्ट ईयर, एंड दिस इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ अ लेबर यूनियन टाइप थिंग, ट्रेड यूनियन. इसमें यह है कि बेसिकली द आइडिया ऑफ सेवा इज टू गिव स्किल टू पुअर वुमेन. ठीक है, जो गरीब घर की औरतें, उनको स्किल दे ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पुअर वुमेन है, ओके, शी इज बीइंग टॉट हाउ टू एक्चुअली यूज सुइंग मशीन. हाँ, सिलाई की मशीन कैसे चलाई जाती है, या मतलब टेलरिंग जिसको कहते हैं, टेलरिंग स्मॉल लेवल पर. तो अब क्या करेंगे, कम से कम वो अपना कपड़ा सी करके बेच करके घर चला लेंगे. ओके, या कुछ और भी चीज होती है हैंडलूम में, स्मॉल लेवल बिजनेस, या स्मॉल लेवल बिजनेस कोई और है. ठीक है, एक मैंने एक बेसिक आइडिया दिया, देखो जैसे प्रोडक्ट इन लोग बनाते हैं. ठीक है, सो 𝗟𝗲𝗴𝗃 जो थी, वो शी वाज द फाउंडर ऑफ दैट, एंड आई थिंक शी डाइड लास्ट ईयर इन नवंबर. खैर ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस है, सेवा. आप कहीं लिख भी सकते हो कभी कभी एग्जांपल वगैरह, कहीं इंटरव्यू वगैरह में. सो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एसोसिएशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल आता है. इसमें यह है कि बस भैया कि फैसिलिटेट करना कि कोई गरीब घर की फीमेल है, उसको स्किल दिया जाए. So to provide them some skill so that she can actually help herself in earning money and all. ठीक है, especially from lower background or poor families and all. ठीक है, मुझे भी आता क्लॉट सिंग, वेरी गुड. हाँ, इनको शायद 𝗟𝗲𝗴𝗃 को कुछ अवार्ड वगैरह मिला था, if I'm not wrong, रामन मैक्स ऐसा. यस, वेरी गुड प्रांजलि. हाँ, ठीक है. So that is what they are talking about. Teaches women farmers how to respond to shifting climate. देखो सिर्फ सुइंग ही नहीं, women farmer को भी सिखाते हैं. क्या सिखाते हैं? How to respond to shifting climate patterns to support themselves better financially. ये नहीं कि अगर क्लाइमेट पैटर्न अगर चेंज हो रहा है तो कैसे उसको अडॉप्ट करना है, कौन सा चीज कहाँ पे उगाना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है. ये जमीन है, ये जमीन क्या चीज के लायक है. सो दिस लैंड इज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, इसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट होता है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन. ठीक है, मतलब कौन से एरिया में कौन सी चीज उगानी चाहिए, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना. Okay, so these are the things they teach कि अच्छा, if you are living in this area or this state में मट्टी ऐसी होती है, so in this state the soil is like this, so this type of crop will be helpful. ठीक है, therefore it is essential to support the groups that educate and all. Basically इन्हें गाइड करने का भी काम करता है, गाइडेंस. ठीक है, जो गरीब लोग हैं या कमजोर तबके के लोग हैं, उनको गाइड करने का काम करता है. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, सही दिशा दिखाना, रास्ता दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Women's participation in climate policy decision making at all level is crucial for effective climate change and all. Yes, women's participation होना चाहिए कोई भी decision making में ना. One such program in South Asia is gender and climate change development program वगैरह बनाया गया है ना. So these are the things that is being talked about. चलो, let's talk about GST. तो ये GST का बता रहे हैं कि revenues have clocked up, यानी increase कर गया है 11.3% in the first 5 months. Sorry. 2023-24 से मैंने बताया है, we write like this FY24 and it starts from 1st April 2023 till 31st March 2024. Okay, with an average monthly KT of 1.66 lakh crore, up from about 1.5 lakh crore last year. This uptake bolstered by the record of 1.87 lakh crore collected in April was slightly better and all. Okay, yes. तो ये सब बता, देखो सब नंबर नहीं याद रखना, बिकॉज हर 2-3 महीना पे चेंज होता रहता है. So just have an idea about it. Okay, so we have performed better and all, है ना. Now e-invoicing समझते, इनवॉइस समझते हो ना, जो बिल वगैरह होता है किसी भी चीज का. e-invoicing मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल्स, है ना. So कोई भी चीज आप खरीदते हो तो इनवॉइस बनता होगा, if you buy anything, and so that is what is being talked about. Okay, GST Council is a what? Your options are statutory body, constitutional body, neither constitutional nor statutory, made through Supreme Court order. Your time starts now. बताइए, GST Council कौन सी बॉडी है? हाँ, yes, GST was formed as a result of 101 Constitutional Amendment 2017. Yes. Yes, Manu is right.
देखो जीएसटी जब बनाई है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 279 कैपिटल ए, बी इज द राइट आंसर। यस गौरी सेट्टी मानो। स्टैचुटरी बॉडी कैसे की 279 कैपिटल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना है, उसमें लिखा हुआ अमेंड करके 279 कैपिटल ए जीएसटी काउंसिल बनाया गया, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके यस। 25% PMUY customer took no cylinder refill or just one last year or one just last year, ठीक है। PMUY मतलब प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, मैंने बताया ये एक स्कीम है टू प्रोवाइड LPG सिलेंडर्स टू वुमेन BPL, है ना, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन, है ना। बट द इशू इज दैट 25% नो सिलेंडर रिफिल, यानी एक बार तो मिल गया, उसके बाद दोबारा सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाए, या कराए भी तो बस एक ही बार करा सके। That is what the argument is of 9.58 करोड़ PMUY हाउसहोल्ड, यानी लगभग 9.58 करोड़ लोगों को मिला है, जिसमें से 1.18 करोड़ ब्रॉट नो रिफिल्स, उसमें से 1.18 करोड़ ने दोबारा भरवाया ही नहीं सिलेंडर को, और 1.51 करोड़ ब्रॉट वन रिफिल, यानी सिर्फ एक बार भरवाया, ओके, ओनली वन टाइम रिफिल, बिकॉज दे माइट नॉट अफोर्ड, शायद वो खरीद नहीं पाते, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो दोबारा सिलेंडर भरवा सके। एक बार मिल गया, यूज कर लिया, उसके बाद फिर वही वापस चले गए होंगे, जो भी वुड से या कोल से या जो भी यूज करते होंगे अपना। सो दैट इज व्हाट एन इशू इज। ओके, सो दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। The spike in LPG cylinder prices made them an expensive proposition even for subsidized household and all। तो चूंकि दाम थोड़ा सा बढ़ गया था, इसीलिए अभी तो 200 रुपए आई थिंक हटाया भी गया ना रिसेंटली, बट दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। कि ये लास्ट ईयर में एक तरह के आर्टिकल आई थी, 90 लाख बेनिफिशियरी डू नॉट गेट रिफिल, इस तरह की आर्टिकल पहले भी आ चुकी है, ठीक है। सो जस्ट हैव उस टाइम पे 90 लाख था, यहाँ पे 1.15 करोड़ दिखा रहा है, 1.51 करोड़ यहाँ और 1.18 करोड़ नो रिफिल के लिए और वन रिफिल के लिए। तो इतना नहीं जाना, बट एक जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं भरा सके हैं। ओके, कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर का, दे आर टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर, मतलब 2022-23 फिस्कल ईयर, ठीक है, लास्ट फिस्कल ईयर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ओके, तो ये सब नंबर्स इतना क्या याद रखोगे, सब नंबर्स ये सब थोड़ी पूछेंगे नंबर, बट एक हाँ, नो रिफिल 1.18 करोड़ लोग हैं, 1.51 करोड़ एक बार रिफिल करा है, ठीक है। ये सब कुछ ग्राफ वगैरह है, बट आई डोंट थिंक इतना ग्राफ वगैरह, सब चीज चेंज होती रहती है। अभी ये सिलेंडर का ग्राम इतना है, फिर इतना हो गया, हो सकता है कुछ दिन बाद कुछ और हो जाए, सो इतना नहीं पूछेंगे, आई डोंट थिंक सो। आदित्य L1 ये काफी ज्यादा न्यूज में है, आई हैव टॉट अबाउट इट, मैंने बताया है, देखो इसमें L1 लाग्रांजे पॉइंट के बारे में बात की है कि अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर है, ये सब मैंने बता दिया, दीज आर द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टॉट, है ना। अब देखो इसमें जो यूनिक चीज है जो फाइंड आउट करना, वो यही है कि बाहर ज्यादा गर्मी अंदर से कैसे है। While the surface of the corona is 5600 डिग्री सेल्सियस, the corona interestingly is about 2 मिलियन डिग्री, मतलब ऐसा कुछ बताया जाता है, जो सरफेस है ना ये 5600 डिग्री सेल्सियस है, जब बाहर का जो कोरोना ये सब निकल रहा है ना, ये इसको कोरोना कहते हैं, ये बहुत ज्यादा 2 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है, 2 मिलियन में समझ रहे हो, 2 × 10⁶ डिग्री सेल्सियस। तो ये अभी तक ना कोई फाइंड आउट नहीं कर सका कि ऐसा है क्यों, रीजन कि चलो ये गर्म होता है, थोड़ा दूर जाते हैं तो ठंडा होना चाहिए, तो यहाँ पे तो थोड़ा ठंडा हुआ, मतलब जैसे ये गर्म है, थोड़ा सा गर्म कम, ये ठंडा, फिर और गर्म, ये वाला इतना ज्यादा गर्म कैसे? सो इट्स एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है, एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ द सन, दिस कोरोना ये जो निकल रहा है ना, ये दिस इज एक्सट्रीमली हॉट एज कंपेयर टू दिस, ये 5600 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 20 लाख डिग्री सेल्सियस, यानी 2 × 10⁶ डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा कैसे होता है? सो दिस इज स्टिल अ मिस्ट्री, maybe the Aditya L1 will find out something about it, ठीक है। We have some idea why it is so, but the problem is not fully resolved, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह पता नहीं चल सका है कि what is the reason। yes मानो राइट, और तो गर्म होता ही तो ऊपर आते आते ठंडा होना चाहिए, ठंडा होते 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 बट यहाँ पर आके और फिर से गर्म हो जा रहा है, कोरोना वाला रीजन, ठीक है। सो दिस इज स्लाइटली अ मिस्ट्री दैट व्हाई दिस हैपेंस, ठीक है। सो जैसे अगर कोर है, मान लो यहाँ पे कोर है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, फिर जैसे कोर से बाहर जा रहे हैं तो ठंडा होते जा रहा है, ठंडा, लेकिन जैसे ही फिर जाओगे फिर टेम्परेचर इसके बाद बढ़ जा रहा है, ओके। सो दिस इज एक्चुअली समथिंग मे बी आदित्य L1 विल बी एबल टू फाइंड। एक और सोहो मिशन है, सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, जो कि नासा ने भेजा था पहले 1995 वगैरह में, थिंक कहीं लिखा होगा, दे हैव ऑलरेडी सेंट इट, है ना। ओके, सो सोहो इज एक्चुअली बाय ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड नासा एट द सेम L1 ही पे भेजा था, ठीक है। L1 वगैरह सब बता दिया हूं मैं, ठीक है। L1 आई हैव डिस्कस्ड इट, व्हाट इज लाग्रांजे पॉइंट एंड ऑल।
ओके दैट इज व्हाट वही बता रहे हैं कि इट विल गो एट L1 पॉइंट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ L1 पॉइंट, उसमें नेट फोर्स 0 होता है ना। कोरोनल मास इजेक्शन जो है मेन रिसर्च का टॉपिक है, वही कोरोनल मास इजेक्शन इसी को कहते हैं, जैसे निकल रहा है ये सब कोरोनल मास इजेक्शन। ओके सो जस्ट हैव एन आइडिया। ओके सोलर विंड्स वगैरह लोग रिसर्च करेंगे। अच्छा एक ये होता है, इसको जानते हैं ऑरोरा, जैसे होता क्या है जब सन का जाता ना है तो यहाँ पे मैग्नेट होता है, तो अर्थ एक्ट्स एज अ मैग्नेट, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है सोलर विंड को, बट यहाँ से कुछ कुछ आ जाता है। सो यहाँ पे नॉर्थ पोल में एंड साउथ पोल में वी सी दिस टाइप ऑफ थिंग, दैट्स कॉल्ड एज ऑरोरा। ठीक है ऑरोरा, ऑरोरा बोरियलिस नॉर्थ में होता है और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ में होता है। ठीक है हाँ हाँ, ऑरोरा बोरियलिस अगर होगा तो नॉर्थ पोल में, ठीक है, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो होता है ऑस्ट्रेलिया नीचे होता है साउथ में, तो साउथ पोल में ऐसा रंग देखने को मिलता है, वो इसीलिए होता है। जो सोलर विंड होता है तो यहाँ पे ना अर्थ जो होता है वो मैग्नेट की तरह काम करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसका वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बट ऊपर से आ जाता है कुछ कुछ। ठीक है L2 पर जेम्स वेब टेलीस्कोप है, यस हाँ यस गौरी यू आर राइट, यहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप यहाँ L2 पर। ठीक है ओके Macron to raise risk of partitioning of the world at G20. Partitioning of the world actually क्या polarization of the world, यानी when Russia-Ukraine war is happening, the world has actually been divided between the pro-Russia and pro-Ukraine bloc. तो West जो है इधर चला गया है, बहुत सारी कंट्री इधर है, silently भी नहीं तो इधर है at least. So that is what he will be raising this issue in the recent G20 summit. ठीक है विक्रम लैंडर does a hop goes to sleep good night till 22 सितंबर। ठीक है मतलब ये कि हॉप करता मतलब देखो इसमें यही है कि थोड़ा सा उछला उसने, हॉप एक्सपेरिमेंट एलिवेटिंग इटसेल्फ बाय 40 सेंटीमीटर एज एक्सपेक्टेड एंड लैंडिंग सेफली एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 to 40 सेंटीमीटर, यानी थोड़ा सा ऊपर उठा होगा समथिंग फिर जाके लैंड कर गया होगा, सो दैट्स दे हैव डिफाइंड इट एज हॉप। ठीक है सो दीस आर द थिंग्स बीइंग डन है ना। हाँ तो विक्रम लैंडर जो है ये लैंडर जो है थोड़ा सा उठा और जाके आगे फिर रखा गया। ठीक है सो दैट इज लैंडर व्हाट वी कॉल इट है ना। Then Xi Jinping, Joe Biden saying he is disappointed that Xi Jinping is not attending the G20 summit. We have discussed it that Chinese president will not be coming and all. Okay. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. My wishes to all of you, as today is Teachers Day. ठीक है, so मेरी दुआएं आपके साथ हैं. You will be able to qualify this exam. Keep on working hard, मेहनत करते रहिए, and hopefully you will get the result. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.